بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں مانسون بارشوں کی انٹری، عیسیٰ خیل، کوٹادو سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، کروڑا لیسن، لیا، چوبارہ اور تونسا شریف میں بھی ابر رحمت، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، آندھی اور بارش سے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جنوبی پنجاب میں مانسون بارشوں کی انٹری ہو چکی ہے۔ عیسیٰ خیل، کوٹادو سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، کروڑا لیسن، لیا، چوبارہ اور تونسا شریف میں بھی ابر رحمت برس چکی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ عوام کو ایک اور جھٹکا، نیپرا نے بجلی 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کا جن بھی آؤٹ آف کنٹرول، عوام کے لیے چاروں طرف مشکلات ہی مشکلات، شہری اور تاجر دونوں پریشان ہیں۔ آپ کو بتا رہے عوام کو ایک اور جھٹکا مل گیا، نیپرا نے بجلی 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کا جن بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، عوام کے لیے چاروں طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، شہری اور تاجر دونوں ہی پریشان دکھائی دیے۔ غریب عوام بدستور ریلیف سے محروم، ایل پی جی کی قیمت مسلسل کم ہو کر 177 روپے کلو تک پہنچ گئی، لیکن عام مارکیٹ میں 210 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مہنگی ایل پی جی کے باعث رکشہ ڈرائیوروں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پلانٹ سے ہی گیس مہنگی ملتی ہے اور دیگر اخراجات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ پلانٹ سے ہم لوگ مہنگی لے کے آتے ہیں تو کرایہ خرچہ یہ بہت ہے، اور دکان کا کرایہ بھی ہے، اس میں ہمیں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم 200-300 روپے سلنڈر پہ بچاتے ہیں تو 2-4 سلنڈر خالی ہوتے ہیں، وہ 1000-1200 سے کیا ہوتا ہے۔ ایل پی جی کی مہنگی دام و فروخت پر رکشہ ڈرائیور اور نان بائی دہائیاں دینے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی ریلیف کبھی بھی ان تک نہیں پہنچا۔ سرکاری قیمت جو ریٹ ہے نا وہ 170 سے 75 روپے ہے، جو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ 210 اور 215 کے قریب ہے، تو وہاں سے تو قیمتیں کم ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا اور سلنڈر کی قیمت بھی بالکل کم نہیں کی جا رہی۔ 10-220 نارمل مل رہی ہے۔ اگر ان سے پوچھو کہ بھائی پیچھے سستی ہو گئی ہے، آپ مہربانی کرو گے تو مہربانی کیا کریں، ہمارے خرچے اتنے ہیں، لانا لے جانا اس کے اوپر ہمارے اپنے بھی کچھ 2-4 پیسے کمانے ہیں۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا کہنا تھا کہ ایک گھر میں روزانہ 500 روپے کی اوسط ایل پی جی استعمال ہوتی ہے۔ روز کا اتنا خرچہ غریب کے لیے مشکل ہے، حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرے۔ ایل پی جی اس قدر مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے۔ ایک گھر میں اگر 2 کلو ایل پی جی جو ہے وہ روزانہ استعمال ہو کھانا پکانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے 500 روپے کا تو صرف اس کا آگ کا چولہا جلے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نے پھر کیا بچوں کو کھلانا ہے، کیا بچوں کو پڑھانا ہے اور اس کا کس طرح علاج کرانا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ایل پی جی کی سرکاری قیمت لاگو کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ ساتھی رپورٹر جنید انور، بلال یونس اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ مہنگی خرید کر سستی کیسے فروخت کریں؟ ایل پی جی گیس کی خرید و فروخت کو گورکھ دھندا بن گیا ہے۔ دکاندار سرکاری ریٹ کی دھجیاں بکھیرنے لگے، چیزیں سستی ہونے کے باوجود عوام ریلیف سے محروم۔ محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ایل پی جی گیس مہنگی خریدنے والوں کے ساتھ بیچنے والے بھی پریشان۔ دکاندار کہتے ہیں اوگرا کے کچھ اور ریٹ ہیں، جبکہ گیس پلانٹ سے اور ریٹس پر گیس ملتی ہے۔ مہنگی گیس لے کر سستی کیسے دیں؟ اس وقت جو ہماری پرچیز ہے نا، گورنمنٹ نے ریٹ دیا ہے 2092 روپے، ٹھیک ہے، اور ہم پرچیز کر رہے ہیں اس وقت گیس 2140 روپے اور 2170 روپے۔ یہ ہمیں جو کاسٹ کر رہی ہے اس وقت یہ 198 روپے 200 روپے ہمیں کاسٹ کر رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں ایل پی جی گیس سستی ملے یا مہنگی، حکومت سے اپیلیں کر کر کے تھک چکے ہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی اچھا سسٹم بنائے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ایل پی جی گیس سستی ہونے کے انہیں ثمرات نہیں ملتے۔ حکومت اشیاء کے سستے داموں فراہمی کے لیے میکنزم بہتر کرے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ اب آپ کو بتائیں ملتانیوں کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی۔ یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خوردنوش کی قلت، گھی مارکیٹ ریٹ پر دستیاب جبکہ اور چینی مل نہیں رہی ہے۔ سہیرہ طارق کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش کی قلت کے باعث شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی دستیاب ہے اور نہ چینی۔ اگر گھی مل بھی جائے تو اس کی قیمت مارکیٹ ریٹ کے برابر 410 روپے ہے۔ آٹا اور گھی ہمیں مل گیا ہے، چینی نایاب ہے، وہ جو ابھی نہیں میسر ہو رہی۔
शहरियों का कहना है कि कई दिन गुजर चुके हैं मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। जब भी खरीदारी करने आते हैं कोई ना कोई चीज गायब होती है। वो बेचारे जो है रुल गए हैं, उन्हें जो है कोई चीज़ नहीं मिलती यहाँ पर, ना ही मैसेज जाता है। पूछने पर यह कहा गया है कि वो सिस्टम हमने बंद कर दिया है, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। दूसरा ये है कि बाज़ार में भी घी 400 का मिल रहा है और यहाँ पर 410 है, तो बाजार का और यूटिलिटी स्टोर का फर्क तकरीबन खत्म हो गया है। शहरियों का मजीद कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया के साथ दीगर सामान की खरीदारी की शर्त ने परेशान कर रखा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। फंड्स की किल्लत या इंतजामिया की नाअहली। मियांवाली के मोहल्ला मियाना की मियां नासिर वाली गली में 1.5 साल से तामीराती काम ठप होकर रह गया। ठेकेदार हैवी मशीनरी गली में छोड़कर गायब हो गए। नालियों का गंदा पानी सड़क पर जमा, ताफून के बायस सांस लेना मुहाल। अहले इलाका नई मुश्किल में फंस गए। कोई वाली वारिस नहीं है। अख्तर मिजाज की इस रिपोर्ट में देखिए। मियांवाली के मोहल्ला मियाना की मियां नासिर वाली गली के मकीन मुश्किल से 1.5 साल से गली का तामीराती काम ठप पड़ा है। शहरियों का कहना है कि नालियों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है। ताफून के बायस घरों में बैठना भी मुश्किल हो गया है। अहले इलाका मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। नालियाँ बह रही हैं लेकिन आगे जाके उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। कोई निकासी का निज़ाम नहीं है और जोड़ बन चुके हैं। और मच्छर से मलेरिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस, पेट की बीमारियां, जिगर की हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन है इस इलाके में। और फिर जब बरसात होती है, बारिश बरसती है, तो यहाँ से बच्चों के गुजरने का किसी बंदे का गुजरना मुश्किल हो जाता है। शहरियों ने बताया कि बारिश के दिनों में कई रोज तक पानी सड़क पर जमा रहता है। लोगों ने इस सड़क से गुजरना छोड़ दिया है। कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। शहरियों का कहना था कि अगर तामीराती काम मुकम्मल नहीं करना था तो सड़क को उखाड़ने की क्या जरूरत थी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं लोग, क्योंकि मेन रोड है, इसको उखाड़ दिया गया है। अब इसको सही करने के लिए कोई वापस नहीं आ रहा। महीनों गुजर गए हैं। चिंची वाले स्पेशली, बच्चे, स्कूल वाले, औरतें होती हैं चिंचियों पे, बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। फिर पानी के जोहर जो है वो बने हुए हैं, उनमें मलेरिया, मच्छर, ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जिले इंतजामिया का कहना था कि फंड्स की किल्लत के बायस गली का तामीराती काम बंद है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर इंतजामिया की नाअहली। यूनिवर्सिटी रोड पर गहरे गड्ढे पड़ गए। 1 किलोमीटर से ज्यादा सड़क पर सफर करना मुहाल हो गया। हिचकोले खाती गाड़ियां किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर शहर का मरकजी रास्ता यूनिवर्सिटी रोड शहरियों के लिए जहमत बन गया। हालिया बारिशों के बाद 1 किलोमीटर से ज्यादा सड़क पर गड्ढे पड़ गए। बगदादुल जदीद रेलवे स्टेशन के पास मोड़ पर गड्ढे खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए। शहरियों का कहना था कि रक्षा उड़ने के 2 वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। अफसरान बड़े हादसे के मुंतजिर हैं। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया। इतने खड्डे हैं कि जब पानी खड़ा होता है पता नहीं चलता कि पानी खड्डे हैं या नहीं हैं। बहुत लोग गिरते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। साथ स्कूल है, स्कूल के बच्चों के बहुत दफा रक्षे कल्टी हुए हैं, बच्चों के बहुत चोटें आई हैं उनको। शहरियों का मजीद कहना था कि 1 फुट तक गहरे गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और हादसा मामूल बन गए हैं। इंतजामिया फौरी तौर पर सड़क की तामीर और मुरम्मत करे। यहाँ पर अगर बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो काफी एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए काफी नुकसान हो रहा है। हादसा बहुत ज्यादा हो रहा है। गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं और गड्ढों में गिर जाती हैं। आप मेहरबानी करके इसे दुरुस्त कराएं। गहरे गड्ढों में हफ्तों तक बारिश का पानी जमा रहता है। हादसा के बाद डेंगू और दीगर बीमारियां फैलने का भी खदशा है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली इंतजामिया की नाअहली। राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। मोज दिली वाली और शहबाज खेल को जाने वाली सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट में देखिए। मियांवाली की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। राहगीरों का कहना है कि सड़क के किनारे टूट चुके हैं और जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। गाड़ियां हिचकोले खाती जाती हैं और मोटरसाइकिल पंचर हो जाते हैं। कई हादसात में राहगीर जख्मी हो चुकी हैं। रोजाना इस सड़क से सैकड़ों लोग गुजरते हैं मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। रोड बिल्कुल त्रुटा है। इतों जाके मोच ताईं दा सारा त्रुटा है। शहबाज खैल दे विच थोड़ा जिहा अद्धा तकरीबन 2 किलोमीटर दा सिस्टम बना हुआ है। उस इलावा बिल्कुल अगू ते कच्चा था। रोज आंदे वेने इतने खड़े लगदे। रोज हुणी बेरे देख दो तो मोटरसाइकिल अगू पंचर थे कल खड़ा नाल ते बिल्कुल हकीकत ते फंड पतने वेंदे केडे पैन कहन लादे नून आंदे पे ते कहन लादे पिटियाई आंदी पई। असां दा हकीकत कोई सिस्टम नहीं, असां दा खड़े नसीब थे।
शहरियों ने राब्ता सड़कें असर नौ तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। अब आपको बताएं, लुडन के फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से गैर फाल। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अहले इलाका का कहना था कि मुझसे सेहत पानी से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फाल करवाया जाए। बिलाल चाकी जोया की रिपोर्ट में देखिए। इलाका में आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। शहरी कहते हैं कि जामिया मस्जिद के सामने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट लुडन का मरकजी प्लांट है, जबकि दूसरे फिल्ट्रेशन प्लांट शहर से दूर हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से साफ पानी के उसूल के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये जड़ा फिल्टर प्लांट है जी, अरसा तकरीबन 2-2.5 साल तो बंद पिया है जी, फना फिला होया पिया है। बाकी फिल्टर मतलब लगे हैं, लेकिन वो इतों काफी दूर दूर तक सानू ओदा बड़ा मुश्किल तो मतलब उतो जाके पानी भर के लाना पौंदा है। इनू चाहिए इंतजामिया नू एदा नोटिस लवे, मेहरबानी करके इनू बहाल किया जाए। लुडन के शहरियों ने अरसा 2 साल से गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन असलम कमलाना के साथ बिलाल शाकिर जोया, रोही, लुडन। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताया स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ तोंसा शरीफ में एहतजाज। सिविल सोसाइटी और प्रेस क्लब मेंबरान की शिरकत। मुजाहिरीन ने स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया है। असमत वसा की रिपोर्ट में देखिए। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ तोंसा शरीफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। शुरका ने कतबे उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान सरकारी तौर पर स्वीडन की हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड कराए और सफीर को मुल्क बदर करे। मुसलमान किसी सूरत अपने मुकद्दस किताब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीडन में जो कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, हम मुसलमान हैं और हम कतई ही ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूडान के सफीर को फिलफौर यहाँ से निकाला जाए और इस कुरान मजीद की बेहुरमती का मुकम्मल उनसे हिसाब लिया जाए। कुरान पाक हमारी रेड लाइन है और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यहाँ से स्वीडन के सफ़ीर को फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकाला जाए और यहाँ पर जितने भी दुनिया भर के जो करोड़ों मुसलमान हैं उनकी दिल आज़ारी हुई है और इस तरह के जो एक्शन होते हैं इनकी किसी भी महज़ब दुनिया में कहीं भी मिसाल नहीं मिलती कि आज़ादी के नाम पर वहाँ पे कुरान पाक को जलाया जाए और नजर आतिश किया जाए। ये हमसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा और हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे स्वीडन के सफ़ीर को यहाँ से मुल्क बदर कर दे। स्वीडन गवर्नमेंट की सरपरस्ती में जो नापाक जसारत हुई है हम उसकी मजम्मत करते हैं। उम्मा मुसलमान की 2 अरब आबादी है, उनको भी मुतहद होना चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर स्वीडन सफारतखाना बंद करे और उनके सफीर को निकाले। मुजाहिरीन ने अपनी सरकार से अक़वाम मुत्तहिदा में स्वीडन के खिलाफ बाकायदा दरखास्त पेश करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि किसी भी मुकद्दस किताब की बेहुरमती राय की आज़ादी नहीं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदा, रोही, तौसा शरीफ। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सादकाबाद में एहतजाज। सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। मुजाहिरीन ने स्वीडन का परचम नजर आतिश कर दिया। मलिक जावेद अनवर की इस रिपोर्ट में देखिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सादकाबाद में भी एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी, समाजी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े ने मुसलमानों को अफसरदा कर दिया है। जमीयत उलमा पाकिस्तान इसकी भरपूर मजम्मत करती है। हमारी क़यादत यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक अल्लाह की पाक किताब है, हम इसकी भरपूर जो वहाँ बेअदबी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें जो कदम भी उठाना पड़ा इसकी इज़्ज़त और एहतराम के लिए हम उठाएंगे। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा इस मालूम की गुस्ताखाना हरकत पर सरापा एहतजाज है। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई है आज पूरी कौम उस पर सरापा एहतजाज है और हमारा हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा है कि वो स्वीडन सफीर को मुल्क बदर करे और स्वीडन में अपना सफारतखाना बंद करे। मुजाहिरीन ने स्वीडन का सफारतखाना बंद करके सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज, सादिकाबाद।
अब आपको बताएं, रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन में अवार्ड तकरीब। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल रेस्क्यूअर्स को तारीफी इसनात और शील्ड से नवाजा। आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान जिली रेस्क्यू स्टेशन में सालाना अवार्ड तकरीब सजाई गई। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर रेस्क्यू अफसरान, रेस्क्यू इंचार्जेस और एजाज पाने वाले रेस्क्यूअर्स मौजूद थे। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने रेस्क्यूअर्स में कैश अवार्ड्स तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल रेस्क्यूअर्स को जिली सतह पर एजाजी शील्ड्स और तारीफी असनाद से नवाजा गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर का कहना था कि तमाम रेस्क्यूअर्स के दरमियान सख्त मुकाबला था। कैश अवार्ड, तारीफी असनाद और शील्ड हासिल करने के बाद रेस्क्यूअर्स की खुशी दीदनी थी। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर का मजीद कहना था कि तमाम रेस्क्यूअर्स इसी तसलसल को जारी रखें ताकि अगले साल भी पोजीशनें हासिल कर सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। विहाड़ी में तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, सियासी समाजी रहनुमा, चैम्बर से दूर और सिविल सोसाइटी के मेंबरान की खुसूसी शिरकत। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। विहाड़ी ई लाइब्रेरी में पासबान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान की जानब से तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा, सिविल सोसाइटी और ताजरान और वकला ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन पासबान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मियां ज़िशान एडवोकेट का कहना था कि इस्लामोफोबिया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आज ये जो तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद था, ये एक मगरबी दुनिया को पैगाम देना था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कौम के अंदर आज भी गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जिंदा हैं और आज भी यहाँ पे ऐसे बहुत से गाज़ी शहीद जो जिंदा हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुफ्र का हर सतह पर मुकाबला करेंगे और हर तरीके से मुकाबला करेंगे। मौलाना इब्राहिम मंसूरी का कहना था कि हम सबको कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आलम कुफर इलानियात नफरत का इजहार करते हैं तो हमें भी इलानिया कुरान से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। मौलाना हबीबुर रहमान ज़िया का कहना था कि कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया है और वही उसकी हिफाजत करने वाला है। स्वीडिश हुकूमत की सरबराही में कुरान मजीद की बेरुमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तहफ़्फ़ुज़ कुरान रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और परचम भी जलाया। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालेह मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। मुल्तान डिवीजन के लिए हुकूमत की तरफ से तरक्याती मंसूबों का तोहफा। चक RS रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर की तामीर की मंजूरी। शहर में 19 नए पार्क बनाए जाएंगे। कैडेट कॉलेज के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दायरा-कार 68 से बढ़ाकर 86 यूनियन काउंसिल्स कर दिया गया है। किला कोहना कासिम बाग के इतराफ पार्क और फूड स्ट्रीट तामीर होगी। हजरत मूसा पाक शहीद के मज़ार मस्जिद समेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान की अपग्रेडेशन और बहाली की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि सिविल, निश्तर, DHQ अस्पताल बिहाड़ी और कार्डियोलॉजी तोसी मंसूबे के फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाएगा। कमिश्नर का मजीद कहना था कि शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला रोड, कच्चा खूह ता अब्दुल हकीम, कबीरवाला ता अड्डा खालिद, लाहौर मोड़ ता मखदूमपुर रोड के फंड्स भी फराहम कर दिए गए हैं। मुकम्मल फंडिंग वाली स्कीमों को 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिंदगी कीमती है, जहानिया में हेलमेट के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट मुफ्त तकसीम किए गए। आगाही मुहिम के बाद खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमजद हुसैन बुचा की इस रिपोर्ट में देखिए। कहानिया में DSP ट्रैफिक खानेवाल माहर अफजल महार की जेरे निगरानी हेलमेट से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। इससे कबल पंजाब सरकार ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम के साथ साथ मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। शहरियों ने हेलमेट से मुतालिक आगाही मुहिम का खैर मुकद्दम किया। सदर अंजुमन ताजरान का कहना था कि हेलमेट का इस्तेमाल का अपना ही फायदा है। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहा। उनका कहना था कि कीमती जिंदगियां बचाने के लिए वन व्हीलिंग और बगैर लाइसेंस बड़ी गाड़ियां चलाने वालों और उनके वालिदैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन, रोही न्यूज, जहानिया। राजनपुर में शहरियों ने शदीद गर्मियों का तोड़ निकाल लिया। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बायस घरों में रहना मुहाल हो गया। राजनपुर में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के साथ साथ हैं हुकूमत की तरफ से नहरों और दरियाओं पर नहाने के खिलाफ दफा 144 नाफिज है, जिसकी वजह से शहरी दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल्स पर आकर नहाते हैं और शदीद गर्मी में ठंडक महसूस करते हैं। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि कुछ वक्त दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए मिल जाता है, तो दूसरी तरफ स्विमिंग पूल्स एक सस्ती तफरीह का जरिया भी है।
اب آپ کو بتائیں لیاقت پور کے شہریوں نے گرمی کا توڑ نکال لیا ہے. ٹھنڈے ٹھار فالودے سے تیار اسپیشل کلفے کی دکان پر پہنچ گئے. رش بڑھنے سے دکاندار بھی چاندی ہو گئی. حسن محمود کی اس رپورٹ میں دیکھیے. لیاقت پور میں گرمی شروع ہوتے ہی الہ آباد کی مشہور سوغات اسپیشل کلفہ کی سیل بڑھ جاتی ہے. دور دراز سے لوگ اسپیشل کلفہ کھانے کے لیے آتے ہیں. کلفے کو خالص دودھ، اخروٹ، الائچی، پستہ اور بادام سے تیار کیا جاتا ہے. اس کے بعد 1 گھنٹے تک ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. اسپیشل کلفہ تیار کر کے دکان پر پہنچایا جاتا ہے. اس کے بعد جامی شیریں، کھویا اور گلاب جامن ڈال کر گاہکوں کو پیش کیا جاتا ہے. مزیدار کلفے کی بدولت کھانے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے. دیگر مشروبات کی طرح اسپیشل کلفہ بھی گرمی کا توڑ ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن محمود، روہی، لیاقت پور. رپورٹ آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے صرف روہی.